حضرت عتبہ بن غزوان رضی اللہ عنہ قبیلہ بنو مازن کے قابل فخر، ہونہار اور ہر دل عزیز فرزند تھے۔ زمانہ جاہلیت میں ان کا خاندان قبیلہ بنو نوفل بن عبد مناف کا حلیف تھا۔ جب یہ 30 برس کے ہوئے تو مکہ کی فضاؤں میں یہ خبر گردش کرنے لگی کہ آمنہ کے لال، عبد المطلب کے پوتے اور عبداللہ کے فرزند ارجمند نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے۔ ان کا پیغام یہ ہے کہ صرف اللہ ہی معبود برحق ہے، وہی خالق و مالک اور وہی رازق و مشکل کشا ہے، موت و حیات اسی کے قبضے میں ہے۔ اس کے پیغام کے منظر عام پر آتے ہی مکہ میں ایک ہنگامہ بپا ہو گیا۔ سرداران قریش نے نو آموز مسلمانوں پر ظلم و ستم کی انتہا کر دی۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے جان نثار ساتھیوں کی بے بسی دیکھتے ہوئے حبشہ کی طرف ہجرت کر جانے کا حکم دیا۔ ہجرت کو اختیار کرنے والے ستم رسیدہ دوسرے قافلے میں حضرت عتبہ بن غزوان بھی شامل تھے۔ کچھ عرصے وہاں پر امن و سکون سے زندگی کے دن گزارے اور پھر واپس مکہ آ گئے۔ چونکہ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور اپنے وطن کی یاد انہیں بے قرار کیے ہوئے تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قریش مکہ کے ظلم و ستم سے تنگ آ کر جب سوئے مدینہ روانہ ہوئے تو آپ علیہ السلام کی جدائی نے حضرت عتبہ بن غزوان کو بے چین کر دیا۔ اب موقع کی تلاش میں رہنے لگے کہ کیسے جلد از جلد محبوب کبریا کی رفاقت اور زیارت کا شرف حاصل ہو۔ شوال 1 ہجری میں اکرمہ بن ابی جہل کی قیادت میں چند قریشی نوجوان مدینے میں نو آباد مسلمانوں پر دباؤ ڈالنے کے لیے مسلح ہو کر نکلے۔ جب سفر کرتے ہوئے رابغ مقام پر پہنچے تو وہاں حضرت عبیدہ بن حارث کی قیادت میں 80 افراد پر مشتمل ایک قافلہ گشت میں تھا۔ مکہ سے آنے والے قافلے کے ساتھ عتبہ بن غزوان اور مقداد بن اسود بھی تھے۔ سالار قافلہ اکرمہ نے سمجھا کہ شاید یہ خاندانی غیرت کو دل میں سمائے ہوئے ہمارے ساتھ جا رہے ہیں، یہ ہمارا ہاتھ بٹائیں گے۔ لیکن جب حق و باطل کا ٹکراؤ ہوا، مکے سے آنے والے سور میں پسپا ہو کر واپس پلٹے تو یہ دونوں سلیم الفطرت نوجوان موقع کو غنیمت سمجھتے ہوئے مجاہدین کے ساتھ جا ملے، اور اس طرح انہوں نے مدینہ پہنچ کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کا شرف حاصل کیا، اور 2 ہجرتوں کا اعزاز حاصل کرنے کی سعادت ان کے نصیب میں آئی۔ حضرت عتبہ بن غزوان نے ان تمام جنگوں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا جن میں سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بذات خود شریک ہوئے۔ ان کی بہادری، جوان مرتی اور جرت اور شجاعت کا تذکرہ زبان زد عام تھا۔ لشکر اسلام کی قیادت کے فرائض سر انجام دینے میں حکیمانہ بصیرت اور ماہرانہ منصوبہ بندی کرنے میں ید طولہ رکھتے تھے۔ ایک روز سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نماز عشاء کے بعد سستانے کے لیے بستر پر لیٹے تاکہ تازہ دم ہو کر رات کو گشت کے لیے نکلیں، لیکن انہیں ایرانی سرحد پر لڑی جانے والی جنگ کی نازک ترین صورتحال کی وجہ سے نیند نہیں آ رہی تھی۔ انہیں جنگی قاصد کے ذریعے یہ خبر پہنچ چکی تھی کہ لشکر اسلام جو ہی اس قابل ہوتا ہے کہ ایک زوردار حملے سے ایرانی فوج کو پسپا کر دے تو کسی جانب سے اسے کمک پہنچ جاتی ہے، اور وہ دوبارہ اپنی قوت کو مجتمع کر کے لشکر اسلام کے سامنے ڈٹ جاتی ہے۔ امیر المومنین سیدنا فاروق اعظم کو یہ بھی بتایا گیا کہ ابولہ شہر سے ایرانی فوج کو کمک بہم پہنچائی جاتی ہے۔ آپ نے یہ پختہ عزم کر لیا کہ ابولہ کو فتح کرنے کے لیے لشکر روانہ کروں گا تاکہ ایرانی فوج کو کمک موصول ہونے کا راستہ منقطع کر دیا جائے۔ لیکن آپ کے پاس افرادی قوت کی بہت کمی تھی، اس لیے کہ نوجوان اور بوڑھے جہاد کے لیے اپنے گھروں سے روانہ ہو چکے تھے، اور ان کے چلے جانے کے بعد مدینہ طیبہ میں چند افراد باقی رہ گئے تھے۔ اس موقع پر آپ نے اپنا معروف حربہ استعمال کیا، وہ یہ کہ افرادی کمی کو تجربہ کار سپاہ سالار کے ذریعے پورا کیا جائے۔ مدینہ منورہ میں موجود تمام افراد کی فہرست سامنے رکھ کر ان کی جنگی مہارت کا بغور جائزہ لینے لگے۔ بڑی طویل سوچ و بچار کے بعد یکدم یہ کہتے ہوئے نعرہ ہوئے، میں نے اسے پا لیا، ہاں میں نے اسے پا لیا۔ پھر بستر پر دراز ہوتے ہوئے فرمانے لگے، یہ ایک ایسا مجاہد ہے جس نے بدر، احد، خندق اور دیگر غزوات میں بڑا نمایاں کردار ادا کیا۔ اس کی تلوار اور تیر کا نشانہ کبھی خطا نہیں گیا۔ مزید اسے حبشہ اور مدینے کی جانب ہجرت کرنے کا اعزاز بھی حاصل ہوا، اور وہ ان خوش نصیب مسلمانوں میں سے ہے جنہیں اسلام قبول کرنے میں سبقت کا شرف حاصل ہوا۔ جب صبح ہوئی تو امیر المومنین سیدنا فاروق اعظم نے ارشاد فرمایا، عتبہ بن غزوان کو میرے پاس بلاؤ، اور اس کی قیادت میں 319 مجاہدین کا لشکر ابولہ کی جانب روانہ کر دیا، اور یہ وعدہ بھی کیا کہ میں تمہاری مدد کے لیے وافر مقدار میں مجاہدین کو بھیجوں گا۔ جب یہ لشکر کوچ کے لیے تیار ہوا تو سیدنا فاروق اعظم لشکر کے سپاہ سالار حضرت عتبہ کو وصیت کرتے ہوئے فرمانے لگے، عتبہ میں تجھے سرزمین ابولہ کی جانب روانہ کر رہا ہوں۔ یہ دشمن کا ایک بڑا مضبوط قلعہ ہے، میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ وہ تیری مدد کرے گا۔
जब तुम अपनी मंजिल पर पहुंचकर पड़ाव करो तो सबसे पहले वहां के बाशिंदों को इस्लाम की दावत देना। अगर वो कबूल कर लें तो वो तुम्हारे भाई हैं। अगर इस्लाम कबूल करने से इनकार कर दें तो उनसे जिजिया वसूल करने का मुतालबा करना। अगर वो जिजिया देने से इनकारी हों तो उनसे जंग करना। ऐ उतबा, अपने मनसब के बारे में अल्लाह से डरते रहना। तकब्बुर, नखवत और अकड़ फूं करने से दामन बचाए रखना। ये आदत इंसान की आक़िबत बर्बाद करने का बायस बनती है। तुम्हें इस बात को अच्छी तरह ज़हन नशीन कर लेना चाहिए कि अल्लाह सुब्हाना व तआला का तुम पर यह बहुत बड़ा एहसान है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बराह रास्त फैज़ हासिल करने का एहसास हासिल हुआ। अल्लाह ताला ने तुम्हें अज़ीमत अता की, कमज़ोरी के बाद क़ुव्वत इनायत की। तुम इस वक्त लश्कर के अमीर और हर दिल अजीज जर्नैल हो। तुम जो बात कहोगे उसे एहतराम की निगाह से देखा जाएगा। तुम जो भी हुक्म दोगे उसे बखुशी तस्लीम किया जाएगा। देखना कहीं इस नेमत को गलत इस्तेमाल न कर बैठना, वरना आखिरत के दिन पछताना पड़ेगा। अल्लाह मुझे और तुझे अपनी पनाह में रखे, आमीन। हजरत उतबा बिन गज़वान रज़ियल्लाहु अन्हु अपना ये लश्कर लेकर रवाना हुए। इस लश्कर में उनकी बीवी के अलावा दीगर 5 मुजाहिदीन की बेगमात भी शामिल थीं। ये लश्कर दुश्वार गुजार रास्तों में से गुजरता हुआ उबुल्ला शहर के करीब एक सरसब्ज मकाम पर खैमज़न हुआ। लश्कर के पास खाने के लिए कोई चीज न थी। जब भूख ने जोर पकड़ा तो हजरत उतबा ने चंद साथियों से कहा, खाने के लिए कुछ तलाश करके लाएं। वो खुराक तलाश करने के लिए निकले ताकि भूख का मदावा हो सके। उनके साथ एक दिलचस्प वाकया पेश आया। उनमें से एक साथी ने बयान किया, हम खाने के लिए कोई चीज तलाश कर रहे थे। हम चलते चलते दरख्तों के एक झुंड में दाखिल हुए। वहां 2 मटके पड़े हुए थे। एक में खजूरें थीं और दूसरा मटका जर्द रंग के छोटे छोटे दानों से भरा हुआ था। हमने दोनों मटके उठा लिए और अमीर लश्कर के पास ले आए। हम में से एक साथी ने मटके में मौजूद दानों पर निगाह डाली और कहा, हमें एहतियात करनी चाहिए। मुमकिन है ये कोई जहर हो जिसे दुश्मन ने हमें हलाक करने के लिए यहाँ रखा हो। हम खजूरों से भरे हुए मटके की तरफ लपके और उन्हें खाना शुरू कर दिया। इतने में घोड़ा रस्सी तोड़ता हुआ सीधा उस मटके की तरफ आया जिसमें जर्द रंग के दाने थे। घोड़े ने मटके में मुंह डाला और बड़ी रगबत से खाना शुरू कर दिया। बखुदा हमने इरादा किया कि घोड़े को ज़िबाह कर लें, वरना जहर से इसकी मौत वाक़ हो जाएगी। हमारे एक साथी ने कहा, रहने दीजिए, मैं रात भर पहरा दूंगा। अगर ये मरने लगा तो फौरन इसे ज़िबाह कर दूंगा। जब सुबह हुई तो हमने देखा कि घोड़े को कुछ भी नहीं हुआ। मुजाहिदीन की बेगमात में से एक ने कहा, मैंने अपने वालिद मोहतरम से सुना है कि जहर को अगर आग पर रख कर जला दिया जाए तो उससे जहरीलापन खत्म हो जाता है। फिर उस खातून ने मटके से कुछ दाने लिए, हंडिया में डाले और नीचे आग जला दी। थोड़ी देर के बाद कहने लगे, ये देखो, दानों के ऊपर से छिलका उतर रहा है और अंदर से सफेद रंग के दाने बरामद हो रहे हैं। हमने जायका चखने के लिए दाने एक प्याले में डालकर अमीर लश्कर की खिदमत में पेश किए। उन्होंने फरमाया, अल्लाह का नाम लेकर खाओ। हमने खाए तो बड़ा मजा आया। बाद में हमें पता चला कि इन दानों को चावल कहते हैं और ये ईरानियों की मरगूब ग़िज़ा है। उबुल्ला जिसे फतह करने के लिए हजरत उतबा बिन गज़वान ने एक छोटे से लश्कर के साथ चढ़ाई की थी, दजला के किनारे पर वाक़े एक महफूज शहर था। ईरानी फौज ने यहाँ असलहा महफूज करने के लिए बड़े बड़े स्टोर बना रखे थे और किले के बुर्जों पर अपने दुश्मनों पर निगाह रखने के लिए रसदगाहें तामीर कर रखी थीं। ये तमाम तर इंतजामात हजरत उतबा बिन गज़वान की जंगी कार्रवाइयों में कोई रुकावट पैदा न कर सके। अमीर लश्कर उतबा रज़ियल्लाहु अन्हु ने नेज़ों के साथ झंडे आवेज़ां करके लश्कर में शामिल ख़वातीन के हाथों में थमा दिए और उन्हें हुक्म दिया कि वो लश्कर के पीछे चलें और उनसे ये भी इरशाद फरमाया, जब हम शहर के करीब पहुंच जाएं तो हमारे पीछे इस कदर गुबार उड़ाएं जिससे फ़ज़ा गर्दालूद हो जाए, किसी को कुछ दिखाई न दे। जब लश्कर इस्लाम उबुल्ला शहर के करीब पहुंचा और ईरानी फौज ने ये मंजर बचश्मे खुद देखा तो वो अंगुश्त बदंदा रह गई कि इतना बड़ा लश्कर पूरे जाहो जलाल से हमारी तरफ पेशकदमी कर रहा है। हम तो इसके मुकाबले में बहुत थोड़े हैं। उनको अपनी जान के लाले पड़ गए। घबराहट के आलम में उन कश्तियों पर बैठ कर भाग निकले जो दरियाए दजला के किनारे हंगामी हालात से निपटने के लिए तैयार लंगर अंदाज थीं। हजरत उतबा रज़ियल्लाहु अन्हु बगैर किसी मज़ाहमत के फातिहाना अंदाज में उबुल्ला शहर में दाखिल हुए। फिर उसके बाद थोड़े ही अरसे में इर्द गिर्द के शहरों और बस्तियों को भी बड़ी आसानी से फतह कर लिया। यहाँ से इतना माल गनीमत हाथ लगा जिसे शुमार करना दुश्वार था। कामयाबी के बाद एक मुजाहिद मदीना मुनव्वरा वापस लौटा तो लोगों ने उससे पूछा, उबुल्ला में मुसलमानों का क्या हाल है? उसने कहा, क्या पूछते हो, बड़े मजे में हैं। हर तरह की आसाइश और आराम उन्हें मैसर है और लोग उबुल्ला शहर में रिहाइश इख्तियार करने के बहुत मुश्ताक दिखाई देते हैं।
इस मौके पर हजरत उतबा बिन गज़वान ने सोचा कि लश्कर इस्लाम का इन मफतूहा शहरों में ज्यादा देर क़याम करना उन्हें आराम तलब बना देगा और ये मुजाहिद यहाँ के बाशिंदों की आदत अपना लेंगे और इनके जंगी अज़ाइम मांद पड़ जाएंगे। उन्होंने अमीरुल मोमिनीन सैयदना फारूक आज़म की तरफ खत लिखा और उनसे एक नया शहर आबाद करने की इजाज़त तलब की और मुजव्वज़ा जगह की निशानदही भी कर दी। अमीरुल मोमिनीन ने यह शहर आबाद करने की उन्हें इजाज़त दे दी। इस नए शहर का नाम बसरा तजवीज़ किया गया। हज़रत उतबा रज़ियल्लाहु अन्हु ने इस नए शहर का नक्शा बनाया। सबसे पहले उसमें एक बहुत बड़ी मस्जिद तामीर की। उस मस्जिद को इस्लाम की सरबुलंदी के लिए अपनी तमाम तर मसाई का मरकज़ बनाया। मस्जिद ही में जिहाद के लिए काफिले तरतीब देकर रवाना किए जाते हैं। इस शहर में मुजाहिदीन ने अपने घर तामीर किए, लेकिन अमीर लश्कर ने अपने लिए कोई घर तामीर न किया। बसरा शहर आबाद हो जाने के बाद अमीरुल मोमिनीन सैयदना फारूक आज़म ने हज़रत उतबा रज़ियल्लाहु अन्हु को उस शहर का गवर्नर मुकर्रर किया। हज़रत उतबा बिन गज़वान जहाँ एक कामयाब जर्नैल थे, वहाँ एक मुनकसिरुल मिजाज, सादगी पसंद, एक मुस्लिह की हैसियत से जाने पहचाने जाते। हज़रत उतबा ने देखा कि बसरा में रिहाइश पजीर मुसलमानों के दिलों में दुनिया की रग़बत पैदा हो चुकी है, जिससे इंसान का दिल गाफिल हो जाता है। उन्होंने इस बात का मुशाहिदा किया कि जो लोग कुछ अरसा पहले चावल से नाशना थे, वो अब ईरानियों की तरह लजीज खानों से लुत्फानंदोज हो रहे हैं। उन्हें जब ऐसी दुनिया से अपने दीन का खतरा लाहक हुआ और दुनिया से अपनी आखिरत खराब होने का अंदेशा पैदा हुआ, तो लोगों को कूफा की मस्जिद में जमा किया और खिताब किया, लोगों, ये दुनिया खत्म होने वाली है। तुम यहाँ से एक ऐसे घर की तरफ मुंतकिल होने वाले हो जिस पर कोई जवाल नहीं होगा। तुम वहाँ नेक आमाल लेकर जाओगे। लोगों, मुझे इस्लाम कबूल करने में सबकत हासिल करने का एजाज है। हम उस वक्त दरख्तों के पत्ते खाकर गुजारा किया करते थे, जिससे बाज़ औक़ात हमारे मुंह जख्मी हो जाते। हमारी गुर्बत का ये आलम था कि तन ढांपने के लिए कपड़ा भी बड़ी मुश्किल से मैसर आता। एक रोज मुझे एक ऐसी चादर मैसर आई जिसे मैंने 2 हिस्सों में तकसीम किया। निस्फ मैंने ज़ेबतन की और दूसरी निस्फ हजरत साद बिन अबी वक्कास को तहबंद बांधने के लिए थी। अब हम में से हर एक किसी न किसी इलाके का गवर्नर है। मैं इस हालत से अल्लाह के हुजूर पनाह चाहता हूँ कि अपने आप को बड़ा समझूं और अल्लाह के दरबार में जलील शुमार किया जाऊं। फिर हाजरीन में से एक को अपना नायब मुकर्रर किया और उन्हें अलविदा कहकर मदीना रवाना हुए। जब अमीरुल मोमिनीन की खिदमत में हाजिर हुए तो अपना इस्तीफा पेश किया, लेकिन आपने उनका इस्तीफा कबूल न किया और उन्हें वापस बसरा जाकर अपना मनसब संभालने का हुक्म दिया। फरमाया, मुझे खिलाफत के अहम तरीन मनसब पर बिठाकर अपना दामन छुड़ाना चाहते हो, मैं तुम्हें राह फरार इख्तियार नहीं करने दूंगा, तुम्हें मेरा हाथ बटाना होगा। उन्होंने बादिल नखास्ता हजरत उमर बिन खत्ताब का हुक्म माना और अपनी ऊंटनी पर सवार होकर सुए बसरा चल दिए। फिर ये दुआ की, इलाही मुझे वापस न लौटाना। अल्लाह ने उनकी दुआ कबूल की। मदीने से अभी थोड़ी ही दूर गए थे कि ऊंटनी लड़खड़ाई। हजरत उतबा बिन गज़वान सर के बल गिरते ही अल्लाह को प्यारे हो गए।